ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सबते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरया रे। गुरु नानक जिन टुणिया पेखिया, से फिर गर्भास न परया रे। सो थान सुहावा जी जित मेरा सतगुरु बैठा जाए। थान सुहावा जी जित मेरा सतगुरु बैठा जाए। तो थान सुहावा जी थान सुहावाजी जित मेरा सतगुरु बैठा। थान सुहावाजी जित मेरा सतगुरु बैठा जाए। सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा, सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा। सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा, सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा। सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा, सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा। सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा, सतगुरु बैठा जाए जिसे मेरा। जी जित मेरा सतगुरु बैठा। धान जी जित मेरा सतगुरु बैठा जाए। जय भगे मेरा सतगुरु सो धन सुहावा। गुरु सिखी सो धन पालिया। गुरु सिखी सो धन पालिया। ले तू मुकलावा गुरसिका की गलता पई। गुरसिका की गलता पई। जिना नाम से आवा जन नानक सतगुरु पूजिया।
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਪੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਵਾਹ 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 ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਾਹ 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 ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ, ਬੈਠ ਗਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਗਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ 4.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮਲੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਲੰਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਲਕਾਰੀ ਮਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲਕਾਰੀ ਮਲ ਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ 4 ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪਾਲਕੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਪਿੱਤਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੂਪਣੇ ਪਾਪਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ,
सिक्खी दी नींह भावें गुरु नानक साहब के समय रखी गई सी, पर गुरु की संगत ये अपने असली स्वरूप 13 अप्रैल 1699 की विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह के पवित्र कर कमलों तो खंडे बाटे दे अमर की पौल प्राप्त करके अपने असली स्वरूप आई। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਏ चोर वर्गे आए, सज्जन ठग वर्गे ठग आए, कौडे राख दे तपदे कड़ाहे आए। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु के संगत दरियाए ब्यासा तू सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज दा पुठे पैरी पानी ढोना, लैण वास्ते जाना ते सीधे पैरी जल लैके आउणा, किते मेरी पिठ मेरे सतगुरु गुरु अंगद दे मर वल ना हो जाए। ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ लाहौर ਦੀਆਂ तत्तियां तवियां आईयां, कुछ लैके जाओ जे। अज दास कीर्तन च बह रहा सी, खालसा दी जे तुसीं जमीनां बना लियां ते की बना लिया, जे जायदादां बना लियां ते की बना लिया, जे दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया तो की कर लिया। और जे तुसीं मनुखा जन्म प्राप्त करके गुरु गोबिंद सिंह दे खंडे बाटे का अमर छक के गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह नहीं बन सके, तुसीं जिंदगी च कख नहीं कीता। खालसा दी तुसीं जीवन दे विच कख नहीं कीता। एक सड़क दे कंढे ते बैठे, एक सड़क के कंढे ते बैठे मजदूर तू जो बजरी कुट रहा है, एक मजदूर जरा टोकरी ढो रहा है, एक मजदूर तू ला के अमरीका दे राष्ट्रपति प्रेजिडेंट ओबामा तक ते हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह तक ते अरब कंट्रियां दे शेखां तक एक गरीब तू लैके सारे कणक की रोटी खाते हैं, कोई सोने की रोटी नहीं खाता। खालसा जी एक बारी कह दो, वैसे कोई सोने की रोटी नहीं खाता। माफ करना गुरु की संगत, अज इस समय ते असीं कुछ लैण वास्ते आए हैं। माफ करना, दुनिया ते बड़े बड़े लोग आए ने, गुरु की संगत दे विचार करके वेख्या जावे। धर्म है तो साका जिन की आ, कुछ लैके जाना छड्ड के ना जाना। मैनू पता आपां सारे मर जाना, आपां इत्थे किसी ने नहीं रहना। एक बारी कह दो वहरू, आपां जिन्हें भी आए सारिया ने मर जाना। सबना मरना आया विछोड़ा सबनाहा, पुछो जाए सियाणियां अगे मिलन कनाहा। गुरु की संगत इहदे विच कोई शक नहीं। जदों तुसीं मरोगे अपने बच्चों की जमीनां छड्ड के जाओगे, जायदादां छड्ड के जाओगे, माड़े चंगे घर घाड़ कोठियां छड्ड के जाओगे। मुक्कदी गल की अपनी औलाद वास्ते अपनी सारी जिंदगी की कमाई छड्ड के जाओगे। वो वास्ता तुहानू गुरु गोबिंद सिंह दा, जिथे अपनी औलाद वास्ते इन्हां कुछ छड्ड के जाओगे, अपने घर गुरु गोबिंद सिंह की सिक्खी भी छड्ड के जाओ जे। खालसा जी अपने घर गुरु गोबिंद सिंह की सिक्खी भी छड्ड के जाओ जे। ये धरती है, माफ करना, ये धरती है। माफ करना, किते छोटे होंदे प्यारे पढ़दे होंदे सा संग ते धरती आनंदपुर दी, और जिथे साजी फौज अकाली पंथ दे वाली संग ते खालसे ने खून डोल के, जिथे टाकरे जुल्म दे कीते साल के बीते। इस धरती का एक एक चप्पा 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 और सिंगा, इथे तू भुखियां ते जरदे खाण वास्ते ना आ, इथे तू शराबां पीण वास्ते ना आ, इथे सैर सपाटे करन वास्ते ना आ। ओ गुरु दे लाला, जे तू इथे आया, इथे दी धरती दी मिट्टी नूं चक के मत्थे ते ला, क्योंकि इस धरती दे चप्पे चप्पे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे चरण पै ने। खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे पवित्र चरण पै ने। इथे दी धरती दा जरा जरा पवित्र गुरु की संगत, माफ करना, इथे फैसला कीता सी, इथे फैसला कीता सी। अपने धर्म लई मर जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, अपने परिवार लई मर जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं। मुक्कदी गल की अपनी जायदाद लई मर जाना, यह भी कोई बहुत वड्डी गल नहीं। और दूजे दे धर्म नूं बचाउण वास्ते सिर धड़ दी बाजी ला देनी, यह सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज दा काम सी। और लखां हो गए तो लखां ने हो जाना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर वर्गा सूरमा सतगुरु दुनिया ते जमना ही नहीं। शहीदी भावें पंजवें पातशाह दी भी हुई है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी नूं बयान किया अपनी बाणी विच। ठीकर फोर दलील सर प्रॉपर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू। आन पातशाह कहंदे मेरे पिता वर्गी कुर्बानी केड़ा कर दूगा, मेरे पिता वर्गी शहीदी केड़ा मार करना दे दूगा। ये ओ धरती है जिस धरती ते 16,000 इस देश की धी भैन बन के काबल कंधार गजनवनी
ਬਸਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀਏ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੰਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਟੱਕੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕੇ। ਸਿੰਘੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜਣਾ। ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਲੋ ਜੇਕਰ ਵੱਜਦਾ, ਜੇਕਰ ਵੱਜਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਲੋ ਜੇਕਰ ਬਚਦਾ, ਜੇਕਰ ਬਚਦਾ। ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਲੋ ਵੱਜਦਾ, ਜੇਕਰ ਵੱਜਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਲੋ ਜੇਕਰ ਵੱਜਦਾ, ਜੇਕਰ ਬਚਦਾ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000 ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤੇਰ ਗਏ ਟੂਪੇ ਜਿਨਸ ਪਾਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਿਪਤਾਨ ਪਈ,
इन्हां दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब नवाज असीं कश्मीर दे पंडित हां, एक बेनती लैके आए हैं, सानू बादशाह रंगजेब जबरदस्ती इस्लाम च लियाउणा चाहुंदा है, किरपा करो साडे धर्म की रखिया की जाए। हिंदू धर्म खतरे च है, और दूजियां दे धर्मां नूं माफ करना, और साडे सतगुरु पातशाह दूजियां दे धर्म नूं बचाउण वास्ते अपनी सिर दर धड़ दी बाजी लाउंदे रह। माफ करना सिंघो, ओए अज असीं अपने धर्म नूं बचाउण वास्ते केस ते दाड़ियां नहीं रख सकदे। अमृत छक के गुरां दे सिंघ सज जाओ, रखो वीरो केस दाड़ियां, छक के गुरां दे सिंघ सज जाओ, रखो सिंघो केस दाड़ियां। के गुरां दे सिंघ सज जाओ, गुरां दे सिंघ सज जाओ, रखो सिंघो केस दाड़ियां। अमृत छक के गुरां दे सिंघ सज जाओ, रखो वीरो केस दाड़ियां। रेडी रखे तो ही सिख मेरा हो साहब, मैं रत बिना नहीं सिख कहावे, रत बिना तेरी चोटा खावे। ओ सिंघो, कदे कश्मीर दे पंडितां ने आख्या सी हिंदू धर्म खतरे च, खतरे च। सिंघो, जे इसे तरह तुसीं सिੱਖੀ ਤੋਂ दूर हुंदा है, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਰ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत छके हुए ना, शरीरक उम्र 9 साल दी सी। माफ करना गुरु प्यारियो, नाल दे साथी बच्चों दे नाल चोजी प्रीतम दे बचपन दे चोज वखरे सन। तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा। अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा, तेरे चोजां दा अंत ना आवे, बाजां वाले चोजिया गुरा।
चौजी मेरे गोविंदा, चौजी मेरे प्यारिया, हर प्रभु मेरा चौजी जिया। चौजी प्रीतम माफ करना, गुरु प्यारियो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों में आए ने। अपने पिता नूं किसे गहरी सोच बैठे देख के बाला प्रीतम पुछदे सन। कदे नजर कश्मीर के पंडितां दे चेहरे ते जांदी सी, कदे हजूर अपने पिता वाल तकदे सन। कश्मीर के पंडितां दी अखां विचों हंझू बह रहे सन, चेहरे तो उदासी सी। माफ करना, अपने पिता वाल चौजी प्रीतम तकदा सी। एक हाथ अपने पिता वाल सी, दूजा हाथ कश्मीर के पंडितां वाल सी। एक हाथ पुछदा सी, सज्जा हाथ पुछदा सी बापू, खब्बा हाथ कहंदा सी ये कौन ने? इह तां गुरु नानक दा घर है, इत्थे रोंदे आउंदे ने, हसदे जांदे ने, दुखी आउंदे ने, सुखी होके जांदे ने। इन्हां ते की विपता आण पई आ? एक हाथ कह रहा सी जे बापू बचदा तो हिंदू धर्म नहीं बचदा, जे हिंदू धर्म बचदा तो बापू नहीं रहिंदा। माफ करना, चौजी प्रीतम पुछदा सी पिता जी कौन ने? इन्हां ते की दुख आण पिया, की विपता आण पई है? आप इन्नी गहरी सोच क्यों बैठे हो? सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने आख्या बेटा गोबिंद राय, कश्मीर दे पंडित ने एक फरियाद लैके आए ने, साडे हिंदू धर्म की रखिया की जावे। सानू बादशाह रंग जबरदस्ती इस्लाम में लियाना चाहता है। चौजी प्रीतम ने पूछना किया बापू इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा है, इन्हां दा धर्म की रखिया किवें हो सकती है? पातशाह ने आख्या बेटा गोबिंद राय यही सोच रहे हैं। आख्या पिताजी सोचने वाली केड़ी गल है, कृपा करके दसना करो इन्हां दा धर्म किवें बच सकदा है? सिर दित्तियां बाज नहीं बचदा धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं बचदा, दित्तियां बाज नहीं बचदा धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं बचदा। दित्तियां बाज नहीं बचदा धर्म, फिर दित्तियां बाज नहीं बचदा। धर्म हेत साका जिनकी आशीष दिया पर, तिलक जंजूरा का प्रभुता का की ना पढ़ो कलू मैं साका। बेटा जेकर कोई बहुत बड़ा महापुरख अपने सर धड़ दी बाजी लगा देवे, माफ करना अपने सिर का ठीकरा बादशाह रंगजेब दे सिर ते फोड़ देवे, तो धर्म बच सकता। असीं सोच रहे हैं जेकर कोई बहुत बड़ा महापुरख महापुरुष अपनी कुर्बानी दे देवे, ये तो धर्म बच सकता। चौजी प्रीतम ने आख्या पिताजी सोचने वाली केड़ी गल आ? दर आए सुवाली नू मोड़िए ना, दर आए सुवाली नू मोड़िए ना, शीशा
उस दे दिल दा फोड़िए ना ओ जिदी बाह फड़िए ओ कदे छोड़िए ना। आख्या बापू तेरे चरणों में भिखारी बन के आए ने, मनता बन के आए ने, समा कुछ इहो जिहा बनया होया जी। माफ करना और जिदी बाह फड़िए कदी छोड़िए ना, जिदी बाह फड़िए कदी छोड़िए ना। भावे अपना आप भी लग जावे, भावे अपना आप भी विक जावे, ओ भावे अपना आप भी विक जावे। सिर देख के करिए संभाल पूरा। जी हाँ बापू करो ना गरीबां दा तरस, सोचन की लोड़ आ। आप कृपा करके दसो मतलोक दी धरती ते की और तिन्हां लोकां दे 14 भवनां विच कोई तुहाडे तो वड्डा कोई महापुरख होर भी है? एक काम तुहानू करना चाहिए। आख्या बेटा गोबिंद राय मैं सोच रहा सी तेरी उम्र इयानी आ, तेरी मां गुजरी विधवा हो जाऊगी। आख्या पिताजी मेरी गल छड्डो, मेरी मां की गल छड्डो। गोबिंद राय अपनी मां नूं विधवा वेख सकदा है, वो भारत की धरती ते वसन वालियां धीआं भैणां नूं विधवा नहीं वेख सकदा। खालसा जी पिताजी तुसीं मैनूं कहंदे मैं यतीम हो जावांगा, मेरी मां गुजरी विधवा हो जाऊगी। पिताजी तुहाडी कुर्बानी रंग लियाएगी। जदों आप शहीदी पाओगे और जदों मेरी माता नूं भारत की धरती ते बसन वाले लोग कोई विधवा थोड़ी कहणगे, भारत की धरती ते बसन वाले लोग आख्या करनगे ओ माता गुजरी एक शहीद पति की धर्म सुपत्नी आ, एक शहीद पति की धर्म सुपत्नी आ। तो मैनू लोकी आख्या करनगे गोबिंद राय शहीद पिता दा पुत्तर आ। खालसा जी साडे ढाडी पढ़िया करदे ने, बड़ा आनंद आउंदा जी। किसी समय मैनू लगदा भी शुरू च तो चंगे बोलते ने, मगरू गला बह जाता, खबरे पेट्रोल खत्म हो जाता है। ढाडी संगत जान पा देंदे ने। माफ करना तेग बहादुर हिंद दी चादर जे ना दिल्ली जांदे, हिंदुआं दे गल जंजू ना हुंदे, सिख ना घात रह पाउंदे। जी हाँ आप आनंदपुर आए हैं जी। तोड़ के सतगुरु दिल्ली दे बल, तोड़ के सतगुरु दिल्ली दे बल, ओ बच्चा बच्चा रोया सी, सतगुरु तेग बहादुर करदा ना कोई होया ना। एक फैसला किया आनंदपुर की धरती ते, एक फैसला किया आनंदपुर की धरती ते पिता ते पुत्र ने। ख्याल गुरु की संग इतिहास बहुत लंबा है, जे करोड़ा जन्म लैके भी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज के इतिहास को बयान कर लगी है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता जी। हजूर दा दिल्ली पुजना एक गल सानू औखी लगती है। एक बारी कह दो वहरू, और एक बारी फिर कह दो वहरू। एक गल सानू औखी लगती कि भाई मनी सिंह का बंद बंद कटिया गया सी, भाई तारू सिंह ने खोपरी लुहाली सी। पातशाह फरमाउंदे ने सच कहूं सुन लियो सब जिन प्रेम कियो, बाबा जिथे प्रेम होवे उथे जान नू दिल करदा। आया दूरू चल के तकी तो मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गुआए जिया।
और जट बट पिछे लड़ के मर जाता, कतल होंदे वेखे ने। मिट्टी नाल प्रेम है, माफ करना। गुआंढी दे नाल कंध कटनी होवे ना, 3 इंच कंध उधर दी उधर होवे ते कंध पिछे लड़ के लोकी मर जांदे ने। क्यों? घर ना प्यार है बाबा, जायदाद पिछे लड़ के मर जांदे ने। प्यार इन्हां सिखां दा प्यार सी गुरु नाल। जिथे प्रेम होवे ओदे दर्शन करन नूं दिल करदा है। दर्शन देख जिवां गुर तेरा पूर्ण करना, यह बनंती देख माम करी अपने चेहरे। जिथे प्रेम होवे ओदी गल सुनन नूं दिल करदा, ओदी गल मनन नूं दिल करदा। सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत, सब गुण तेरे में नहीं कोई बिन गुण कीते। मुकदी गल के खालसा दी समा थोड़ा, और जिथे प्रेम होवे उथे बाबा मरन नूं भी दिल करता है। जे तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली, मार्ग पैर तरी जाए सिर दी जाए कान न की जाए। हजूर दिली दरबार दे विच एक पासा बखदा बादशाह, बादशाह भी कैसा बच्चा खिंदू दा रहन नहीं देना। शराब विच आदो काफरो, हिंदू दा रहन नहीं देना। ओ शराब विच आदो काफरो, बच्चा हिंदू दा रहना। जदू जग ते जुल्म दी अत हुंदी, जदू जग ते जुल्म दी अत हुंदी, धर्म लुकदा लुक जांदा है। ते जेड़े बंदे नूं चिंता दा रोग लगा, बंदा सुकदा सुक जांदा है। जेकर सज्जन प्यारे नूं मिलिए ना, ते रिश्ता टुटदा टुट जांदा है। अंतम समा इंसान दा जदू आवे, ते दम रुक जांदा है। बच्चा खिंदू दा रहन नहीं देना, शरा दे विच आ जाओ काफरा। खिंदू दा रहन नहीं देना, शरा विच आ जाओ काफरा। ना कहूँ मैं तब की, ना कहूँ मैं जब की, बात करूँ मैं अब की। वो अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। अज मंदिरां दे विच टलियां ना वजदियां, अज हरे राम, माफ करना, हरे राम ते हरे शाम ना हुंदी।
ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਯੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੇ ਚੌਰ ਝੂਟਦੇ ਸਨ, ਛਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ? ਗੁਰਦੇਵ ਚੁੱਪ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ। ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਊ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਗਊ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਆ। ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਓਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਇਹ ਦੱਸ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਓਏ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ,
मैं भारत की धरती ते किसी दूजे धर्म का दीवा नहीं जगन देना। महाराज कहते बादशाह रंगजेब तेरी तो मेरी विचार च ना ही फर्क आ। तू कहता कि मैं दूजे धर्म का दीवा जगन नहीं देना, और मैं भी आ गया मौत के कफन बन के मैं भारत की धरती के किसी भी धर्म का दीवा बुझन नहीं देना खालसा जी, क्योंकि मेरा धर्म है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने तुरबत दा पड़ा। बादशाह रंगजेब सानू लिख के दे दे कि मुसलमान होकर कोई मरदा नहीं, जे मुसलमान होकर भी मर जाना फिर असी अपना धर्म किसी भी कीमत का छड्डण वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि अंतिम समय मुक्ति का कारण धर्म ही बनता। जिस धर्म च बंदे का जन्म होता है, बंदा अपने धर्म के मुताबिक चलता है, अंतिम समय ते बंदे का धर्म ही रखिया करता। असीं किसी भी कीमत ते अपना धर्म नहीं छड्डना। सूरा सो पचानिया तो नरे दीन के, पुरजा पुरजा कट मरा कबू न छड़ खेत। तमें आख्या दी तुसीं मैनूं जानदे नहीं, किसी का मूँह ते आ गल कह देनी। एक बारी कह दो वाहरू तुसीं मैनूं जानदे नहीं। पातशाह कहंदे तैनूं कौन नहीं जानता, तैनूं हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उन्हें आख्या दसो जी की जानते हो। गुरुदेव ने आख्या अपने पर्दे आप यार नहीं कराई थे। कल लगा जी तुसीं मेरे पर्दे यार कर ही दिया। गुरुदेव ने आख्या बादशाह रंगजेब तू ओ रंगजेब है जिन्हें दिल्ली के झूठे राज बदले, अपने प्यो शाहजहान नूं कैदी बनाया, जूदे दियां अखां कढवाइयां। तू ओही बादशाह रंगजेब है ना जिन्हें दिल्ली का राज बदले, अपने सके भरावां दे कतल कीते। और बादशाह रंगजेब तू अपने प्यो का नहीं बन सकिया, अपने भरावां का नहीं बन सकिया, तू पूछना की चाहुंदा। बादशाह रंगजेब ने आख्या जी बंद करो, ए बंद करो, ये लेक्चरबाजी मैं नहीं सुन सकता। बादशाह कहता तू किथों सुन लेगा, जे कि बोले सच कूड़ा जल जावी। झूठे बंदे नूं अग लग जावे, जे कोई गल करे सच दी, झूठे बंदे नूं अग लग जावे, जे कोई गल करे सच दी, झूठे बंदे नूं अग लग जावे। बोले सच कूड़ा जल जावी। इन्हें आख्या तुहानू पता मैं वक्त दा बादशाह। गुरुदेव ने आख्या तेनू पता मैं वक्त दा बादशाह हाँ। संत कमार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी, कोट जन्म के किल बखना से हर चरनी जितलाए। इन्हें आख्या जी एक गल का जवाब दो, तुहानू तेग बहादुर क्यों कहते हैं? एक बारी कह दो वाहरू। तेग दे अर्थ निकलते हैं तलवार, बहादुर दे अर्थ निकलते हैं सूरमा। तुहानू ते तेग बहादुर क्यों कहते हैं? सतगुरु गुरु तेग बहादुर ने आख्या अपने प्यो शाहजहान नू पुछ। एक बारी कह दो वाहरू, अपने प्यो शाहजहान नू पुछ मैनू तेग बहादुर क्यों कहते हैं?
मैं उस सूरमे गुरु का पुत्र हाँ, गुरु हरगोबिंद साहब जी का। मैं उस सूरमे गुरु का पुत्र हाँ। माफ करना, मेरे पिता ने अपने प्यो नूं पुछ, शाहजहां नूं पुछ जाके, अपने प्यो नूं पुछ, माफ करना अपने प्यो नूं पुछ, और जिदे हाथों जंग दे मैदान अंदर मेरे पिता सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने हाँ कई बारी तलवार भुंजे के सटवाई आ। पंज पियाले पंज पीर छटम पीर बैठा गुरु अर्जन का यहाँ पंच कमूरत हरगोबिंद तवारी। अपने प्यो नूं पुछ, मैं उस गुरु का पुत्र हाँ जो तेग का धनी है। मैनू इस करके तेग बहादुर कहते हैं। इन्हें आख्या जे गल्लां बंद करो, गुरु साहब कहते तेन पहले क्या सी, तेरे को सुनिया नहीं जानिया। इन्हें आख्या करामात विखाओ। मारे करामात, करामाता सतगुरु गुरु हरा साहब दे बड़े साहिबजादे बाबा राम राय तू बड़ियां करामातां वेख चुका है। करामात कहर दा नाम है। करामात विखा के असी परमेश्वर के शरीक नहीं बनना। उन्हें आख्या तो करामात भी नहीं विखानी जे इस्लाम भी कबूल नहीं करना। याद रखना, मैं तुहानू एक बहुत बड़ी सजा देंगा। मारे कहने की, कहता वड्डी तू वड्डी। फिर बादशाह कहने की पता तो लगे है। कहता जी मैं तुहानू मरवा देंगा। मारे कहने मूर्ख, ओ मरना कोई सजा जी मौत का डर सानू देना होए, इस मौत तू बच जाएगा। मरना रबी असूल है। जो आया सो चल सी सब कोई आई। राम गयो रामन गयो जाको ओ नानक फिर कछ नहीं ओ सुपने जुबन तार। अथ राम वर्गे तुर गया, अथ रावण वर्गे और जिन्हां दा लख पुत्र ते सवा लख पोतरा सी, जिन्हां दी सोने दी लंका बनी सी। अकल देने बादशाह रंगदेव इथू ओ तुर गए ने, इथू ओ तुर गए ने। तू सानू केड़ी मौत दा डर दिंदा है? याद रखना, जिहड़ी मौत नूं तू मौत समझदा ना, उस मौत नूं असीं अपना जीवन समझदे आ, जीवन। पर गल याद रखनी, तेरे नाम तो लोकी तरकारां पाया करनगे और साडी याद इत्थे मेले लग्या करनगे, केसरी निशान साहब झूलिया करनगे। अज गुरुद्वारा सीसगंज साहब दिल्ली जाइए ना, मत्था टेकन वालियां दी लैन नहीं टुटदी। सारा दिन एक बारी कह दिओ वैर, सारा दिन लैन नहीं टुटदी बाबा, जगह ही नहीं मिलती। आया दूरू चल के पक्की तो सुरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गुआए जियो। बादशाह रंगजेब इत्थे साडी याद विच केसरी निशान साहब झूलिया करनगे। याद रखना, तेरे नाम ते लोकी तरकारां पाया करनगे। औरंगाबाद के नेड़े लगदा पिंड फरूकाबाद पैंदा जी, एक बारी कह दे वहरू। दास नूं कई बारी ये जगह वेखण दा मौका मिलिया, दर्शन नहीं कहना क्योंकि वो बड़ा पापी सी, कह दे वहरू। दर्शन शब्द तो गुरु वास्ते वरते है। कोठा और जिदे अंदर फरूकाबाद एक पिंड पैंदा है, कच्चा कोठा। उस कच्चे कोठे दे अंदर बादशाह औरंगजेब की कबर बनी हुई है। उस कबर ते मंगते ने
आ जाने वाले राही 2 पैसे दे दे चिराग दे जलाने के लिए। ओदी कब्र ते मंगते ने। बादशाह रंगदेव ने आख्या आड़ी चंगी नहीं होती, जिद चंगी नहीं होती, छड्डो परां किहड़ी गल च पए हो। कई बारी बच्चा बापू नाल लड़ पैंदा है, बापू बड़ा समझाउंदा पोतां दा, बापू हुण मैं तेरे विच नहीं रहना, ते बापू चाचियां तायां नूं कहंदा इहनूं समझाओ। बच्चा चाचियां तायां नूं कहंदा बई मैं नहीं बापू च रहना, चाचे ताए कहंदे अड़ी छड्ड दे, अड़ी चंगी नहीं होंदी। बादशाह रंगदेव ने आख्या आ गुरु तेग बहादुर जी काहदे वास्ते आई ते आ गए हो, बड़ी कर लग पे, जिद कर लग पे हो। आई चंगी नहीं होती, छड्डो, आई इस्लाम कबूल करोगा, करामात विखाओ। बादशाह कहंदा नहीं सी कटदा वक्त गरीबां दा, नहीं सी कटदा वक्त गरीबां दा, इसलिए आई ते आउण नूं आ गया। गरीबां लई जूना हराम कर दिता सी तू गरीबां दा। बादशाह रंगदेव मेरे 5 साल दे बाला प्रीतम ने आख्या सी बापू तेरा लाडला अपनी मां गुजरी नूं विधवा वेच सकदा है, भारत दी धरती ते वसण वालियां मावां ते भैणां नूं विधवा नहीं वेच सकदा। गुरु तो दुनिया में लाखों हुए भी, लाखों होंगे भी, पर गुरु तेग बहादुर जी की चाल निराली है। ये जो लाल किले का रंग लाल है ना, ये रंग लाल किले का रंग लाल नहीं, ये गुरु तेग बहादुर जी के खून की लाली है। खालसा जी माफ करना मेरियो मामो, मेरियो भैणो, ओ भारत दी धरती ते वसण वालियो मामो भैणो, आज जेड़ा तुसी चीर दे विच संधूर भरदियां लाल रंग दा, समझ लो गुरु तेग बहादुर वर्दी खून दी लाली है। खालसा जी नौवें गुरु में शीश दे के अपना डुबी जाती हिंद रख लई, नौवें गुरु ने शीश दे के अपना डुबी जाती हिंद रख लई, नौवें गुरु ने शीश दे के अपना डुबी जाती हिंद रख लई। कर्म खेत बाका जिन किया सीतिया पर तिलक जंजूरा सापुता का कीनो बड़ो कलू में सकार। ओ क्या बादशाह रंगदेव आजकल गाने चल पे, छोटा जा काका गाने गावे, साडी गली आना साडी गली जाना। मैं क्या तुहाडी गली खंड का डिपू लगा जिते खंड भी 45 रुपये किलो हो गई है। आजा एक ऐसी गली भी है तो प्रेम खिल का चाहो सर पर तली, मार्ग पैर तली जय जी हाँ। बादशाह रंगदेव नहीं सी कटदा वक्त गरीबां दा, नहीं सी कटदा वक्त गरीबां दा, इसलिए आई ते आउण नूं आ गया। हाँ अज दी मां नूं पुछो भैणे माता काके दे सिर दे केस कतल क्यों कर दिते ने,
ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਰੀਆਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ, ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਰੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮੋਰੀ। ਉਹ ਜਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੇ ਪਰੇ। ਨੀਤੀ ਕੱਟਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਨੀਤੀ ਕੱਟਦਾ ਵਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜਬ ਛੋਟੇ ਚਾਹੇ ਗੁਪਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਚਾਹੇ ਗੁਪਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਤਲੂ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਤਲੂ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਸਹੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਹੋਲਾ ਖੇਡੋ। ਹੁਣ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਗੈਰਨ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਗੱਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਰ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ, ਅਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਰੀ ਪੜ ਕੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਗੋਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੰਗ ਮੈਨ ਉਹ
ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਲੈਣੇ, ਪਟਕੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਲੈਣੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, जहां सब कफन बांधे यार बैठे हैं, यहाँ सब कफन बांधे यार बैठे हैं, और कुछ मर के चले गए हैं, कुछ तैयार बैठे हैं। खालसा जी मैनू एक गल याद आई सी, माफ करना, एक गल याद आई। नादर अहमद शाह अब्दाली सिखां दा दाना दुश्मन सी, जिहदे राज विच सिखां दे सिरां दी कीमत टका टका पै गई। माफ करना, इहदा नूरदीन नां दा अज आनंदपुर दी गल चल रही है जी। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू। इहदा नूरदीन नां दा वजीर सी। अहमद शाह अब्दाली ने आख्या, नूरदीना मैं सिखां दे पिंड नहीं छड्डे, इन्हां दे घर नहीं छड्डे, बंगले नहीं छड्डे, अड्डे नहीं छड्डे, छाउणियां नहीं छड्डियां। ओ नूरदीना मैं इन्हां नूं मार मार के थक गया, पर मरन वाले नहीं थके। ये मरन वाले नहीं थके, मैं मार मार के थक गया। ये मुकदे ही नहीं रहिंदे कित्थे ने। नूरदीन ने आख्या सी, नवाब खान सिख पिंडां च नहीं रहिंदे, अड्डियां छाउणियां ते नहीं रहिंदे, सिख घरां च नहीं रहिंदा, और सिख रहिंदा ना घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते, रहिंदा ना घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते। इहने आख्या मुकाया मुकदा ही नहीं। नूरदीन ने आख्या, जे इन्हां नूं मुकाउणा चाहुंदा एक गल सुन ला। नवाब ने आख्या, की? आख्या, जदों तक सिख आनंदपुर का इतिहास नहीं भुलते। हाँ सिंगा, तेरा विरसा गंदिया गाणियां तो शुरू नहीं होता, तेरा विरसा पब्बां क्लबां तो शुरू नहीं होता, तेरा विरसा लाहौर दियां पत्तियां तवियां तो शुरू होता। खालसा जी तेरा विरसा की गल चांदनी चौक दिल्ली वाल वधदी आ, तेरे विरसे की गल आनंदगढ़ का किला आनंदपुर साहब का, तेरा विरसा इहदा तो जवानी चढ़ती है चमकौर की गढ़ी च। इहदी गल पूरी होंदी आ सरहद की खूनी दीवार में जाके। आख्या तो सिखां नूं मुकाउणा चाहुंदा है, मुकने नहीं अज नहीं मुकने आ, ना ना ना, इन्हां नूं मुकाउणा चाहुंदा है जदों तक इन्हां नूं आनंदपुर याद आ, आनंदपुर का इतिहास याद आ, उदों तक मुकने नहीं। जे मुकाउणा चाहुंदा इन्हां दा इतिहास खत्म कर दे। मैनूं एक गल याद आई सी, नादर शाह का दरबार लगा, भावें नौजवानों तुसीं दाढ़ियां केस बना छड्डे, फिर की हो गया, पर हथ तुहाडा फिर भी मुछ ते जाना, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे च गैरत भर गए ने, भावें दाढ़ी रगड़ के वड्डी होवे। एक मैनूं दिलबर दी वार याद आई, मैं अक्सर गड्डी च बैठा बड़ी मौज पढ़दा रहना, और मैनूं बड़ी चंगी लगदी आ। कहंदा, सोहणा वीर पंजाबी आ, तू भारत दा शिंगार होए, तेरे देश च कुदरत वसदी ते गिद्धा पाए बहार। पंजाब दीयां नदियां, पंजाब दे दरिया, पंजाब दे पहाड़, पंजाब दीयां रुत्तां, पंजाब दा अमृत वेला, पंजाब दे खूह, पंजाब दीयां नहरां, पंजाब दे ट्यूबवैल, माफ करना पंजाब दे बाग ते बगीचे। साडे हरियाणे च कैथल तो अगे लंघ जाइए तो खेत खाली मिलते ने, कैथल तो अगे जाइए। माफ करना गुरु की संगत कर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। राजस्थान तुर जाइए तो और भी कुछ नहीं मिलता। कहता तेरे देश कुदरत बसदी ते गिद्धा पाए बहार, ऐसा लट्टू होइयां बुलबुलां, तेरी दह खिड़ी गुलजार।
जिथे बाग तो बगीचा नहीं उत्थे बुलबुलां ने की लेने। इत्थे लड्डू होइयां बुलबुलां। तेरा तेरी देखड़ी गुलजार अज धी भैन का विआह होया ते चौथे दिन तलाकनामा ते डिवोर्स हो गया। आंदा तलाकनामे ते डिवोर्स देने वाले हो और तुहाडे नालों तां घमियारां दी कुड़ी सोहनी चंगी आ। ओनू पता सी घड़ा कच्चा, कच्चे ने खुर जाना, मैं मर जाना। ओ कहंदा लिखदा तेरा इश्क चन्हा विच नचदा, तेरा इश्क चन्हा विच, तेरा इश्क चन्हा विच नचदा, ढोले गाउंदी नार। और तेरियां कुंडियां मुछां वेख के, तेरियां कुंडियां मुछां वेख के जग भुलिया हार सिंगार। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एक समय कहते ने हरी सिंह नलवे नूं अंग्रेज दा राज सी। एक फैसला करने वास्ते भेजा कि लॉर्ड होंदे सन, वायसराय होंदे सन। तंबू लगा समा थोड़ा जी। जदों कंप्रोमाइज दे कहते ने कागजां ते पेपरां ते हरी सिंह नलवा सैन लगा ना करने, एक अद मुछां ते गया, मुछां ते सामने वायसराय बैठा सी। जदों हरी सिंह ने मुछ ते रखिया, हथ ते लगा सैन करना। एक गल इन्हां भैणां कोल बड़ी चंगी मिल जाती है, वैसे तो नहीं कही जा सकती। छोटे जे न्याणे नूं आखणगियां काका छुछू कर ला छुछू। हरी सिंह नलवे ने कहंदा जद रखिया मुछ ते हथ, कहंदा वायसराय दा छुछू पैंट च निकल गया, उठ के तुर गया। हरी सिंह नलवा उड़ीकदा रहा, हरी सिंह नलवा उड़ीकदा रहा भी होना आउंदा, शाम पै गई ना आया। महाराजा रणजीत सिंह ने पूछा फैसला कर आया जी, फैसला की करना जी? उन्होंने मेरी नरादरी बड़ी की, उठ के तुर गया, मुड़ के आया ही नहीं। दूजे दिन शेरे पंजाब ने वायसराय नूं ते लॉर्ड नूं सद्दिया। तेरे ये गल लॉर्ड नूं कही भी तेरे वायसराय ने मेरे जरनैल की बेइज्जती की। आंदा ना बाबा मैं बेइज्जती कानूं कीती है, और जदों तेरा जरनैल ने हथ रखिया मुछ ते मेरा हौसला नहीं पिया, मैं तो खलो जा खालसा नहीं। तेरियां कुंडियां मुछां वेख के जग भुलिया हार शिंगार। तेनू रावी भुल न सकदी तेरा सतजुग, तेनू रावी भुल न सकदी तेरा सतजुग। तेरा सतलुज पक्का यार जिदे कंडे ते गामारियां। आनंदपुर की धरती ते बैठे आ, तेनू रावी नहीं भुल सकती। पंजवें पातशाह रावी दरिया के कंढे ते शहीद किया गया संततियां तवियां ते बिठा के। तेनू रावी भुल ना सकती तेरा सतलुज पक्का यार जिदे कंढे तेगा मारियां। नीले दा शाह सवार तेरी शान उतों दशमेश ने सिर्फ पुत्र बारे चार। और तू लंडन दे विच मारिया। परसों मैं एक कीर्तन च बोल रहा सा, एक बारी करोगे कृपा? और कलगियां वाला कपड़े जी जान पा गया है। और 400-500 बंदा केसा धारी पग्गा वाला दस्तारा वाला खलोता होवे। हाँ तेरी छान नराली, तेरा रहना नराला, बहना नराला। कपड़ियां च जान पा गया। नीली पग वाले नूं वेख के कहंदा अकाली जांदे आ। केसरी दस्तारा वाले नूं वेख के कहंदे भाई माफ करना कुर्बानी दा रंग आ। ये लोहे दे विच जान पा गया जी। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। कलगियां वाला लोहे दे विच जान पै गया। 9 इंच दा चाकू होवे ना, चाकू कहंदे हो काचू कहंदे हो, चाकू ही समझ लो। 9 इंच दा चाकू होवे बाजार च लैके फिरो चलान हो जाता। श्री साहब भावे 4 फुट की लम्मी फड़ के तुर लो, केड़ा चलान कर दूंगा। माफ करना ये लोहे च जान पा गया बाजा वाला। ये मुर्दा दिल इंसाना में जान पा गया। शहीदियां बड़ियां हुई ने हिंदुस्तान नूं याद कराउण वास्ते। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू। शहीदियां बड़ियां होइयां। शहीदी राजगुरु सुखदेव दी होई,
शहीदी लाला लाजपत राय दी हुई, सारे पूजन योग ने। शहीदी चंद्र शेखर याद दी हुई, पर एक्टरां नूं भी पिक्चरां बनाउण वास्ते भगत सिंह जां उधम सिंह ही मिलदा, और नहीं कोई मिलदा। इन्हां नूं भी भगत सिंह ते उधम सिंह मिलदा। ओ कुड़ियां मुछां वेख के जग भुलिया, तैनूं राह भी भुल ना सकदी। हाँ, जदों कारगिल दी लड़ाई होई, बाबा एक गल सुणावा, क्या दिओ सुना दिओ, तुसीं सुणोगे। जदों कारगिल दी लड़ाई होई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उदों वाजपेयी जी हिंदुस्तान दे प्राइम मिनिस्टर सन। वाजपेयी ने प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूं आखिया पाकिस्तानियों बंदे बन जाओ, असीं चूड़ियां नहीं पा के बैठे। अगो प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आखे तुसीं नहीं चूड़ियां पाइयां ते असीं किहड़ियां चूड़ियां पाइयां ने। ते वाजपेयी ने जवाब दिता, जे तुसीं चूड़ियां नहीं पाइयां, साडे कोल कड़ियां वाले भी हैगे ने, साडे कोल कड़ियां वाले भी हैगे ने। देखे किसकी आदश मिश्की ने, देखे किसकी आदश मिश्की ने, हो जाओ बखियां अज सर भारियां ने। कंगा फेर दे सदा याद रखना, कद चलनियां सिरां ते। आरियां ने दिते तैग मजलूम दे कर ही रखिया, कड़ा नहीं है कड़ियां मारियां ने। जिद्दी कछ यत सत विच रही पूरा, एंदे विचे बरकतां सारियां ने। माफ करना तेरी शान उतों दशमेश ने, सिर्फ पुत्तर बारे 4 तू लंडन दे विच मारिया। शहीद आजम सरदार उधम सिंह ओ तू लंडन दे विच मारिया। डायर जा बदकार ओ तू दिलबर शेर पंजाब दा, गिदड़ ना बन। एक बारी कह रहे हो बहरू, गिदड़ ना बन, अमृत छक, छड्ड नशे ते भुखियां ते जरदे। महाराज गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां नूं याद करके जाया जे। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं गिदड़ा कोलों, सवा लाख से तबे गोबिंद सिंह। मैनू एक गल याद आई जी, समा आज्ञा नहीं दे रहा, महापुरख बैठे ने। नादर शाह दरबार लगा, नादर शाह दा, एक बारी कह दो वहरू। खबर सदे वजीर मंत्री टहल कर बैठे ने। कुछ बहुत रुपया का एक टोला आया जथा, नादर शाह के दरबार च पेश होया। ते नादर शाह पुछदा कौन होंदे हो? इन्हें आख्या जी बहुत रुपये होने। आख्या की करते? नगला लाने होने जी। काहदे लई आए हैं जी? सरकार दे कोल आए हैं। कोई सरकार दे मन पसंद मन भाउंदी जो सरकार कहनो नकल दिखाइए। आख्या नकल दिखाओगे? आख्या हाँ। नादर शाह ने आख्या इन्हां बरूपियां नूं आख्या कोई गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां दी नकल ला के दसो। कोई कलगीधर दे सिंघां दी नकल ला के दसो। ओ दसो इन्हां सिंघां नूं मार मार के थक गया, इन्हां च शक्ति कित्थों है? इन्हां च शक्ति कित्थों? मरदे ही नहीं। एक बारी कह रहे बहर ये मरदे ही नहीं। इन्हां नूं मार मार के थक गया, मरना इन्हां कित्थे है? इन्हां नूं मारदे मुगल मर गया। एक बारी कह दो वाहिगुरू, इन्हां नूं मारदे मुगल मर गया। ए ना मरिया, इनू मारदे हिंदुस्तान के उत्ते 150-200 साल राज करके अंग्रेज रोंदा हिंदुस्तान छड़ के तुर गया सी। खालसा जी एक बारी कह दो वाहिगुरू। जेकर सरदार भगत सिंह असैंबली दे विच बंब ना सड़दा, जनरल सैंडर्स नूं ना मारदा, और जेकर सरदार उधम सिंह जनरल डायर नूं इंग्लैंड च ना मारदा जाके,
शायद हिंदुस्तान याद ना होंदा खालसा जी। जदों जनरल डायर नूं मारिया गोरे कंब उठे ओए तो साडे घर ही आण पैने होए। एक बारी कह दो वाहिगुरू मैदान च लड़ना वखरी गल है, साडे घर ही आ गए ने, साडे घर ही आण पैने। आख्या सिखां दे विच शक्ति, सिखां दे जकारे च जद बोलदे ने ना बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। कहंदा जद ये जकारा बोलदे ने मौत माफ करना, मौत नूं मशकरियां कर लग जांदे ने। आख्या जकारे च शक्ति दिखाओ। फिर 500 वो रुपया सन 250 तुर्कां दी फौज बन गई ते 250 सिखां दी खालसियां दी फौज। दस्तारां बन लिया, नकली लाउणी सी। एक बारी कह दो वाहिगुरू नकली लाउणी सी। 250 तुर्क बन गए, 250 खालसियां दी फौज। फौज का एक पासे जथेदार शस्त्र फड़ ला, ढालां फड़ लिया। कहता हुणे दसदे सिखां शक्ति कित्थों है। जथेदार ने जकारा बोलिया बोले सो निहाल। आमो सामने जंग शुरू हो गई। लगा लोहे तो लोहा खड़कन। और जड़े सिंह बने सन कि बांह वड़ छड़ी, लत्त वड़ छड़ी, एक दो मर भी गए। माफ करना हो नादर शाह कहता मत मारी गई तुहाडी बार रुपयो। ठहरो है की करते पे हो, अपने वड्डी जाते हो, अपने वड्डी जाते हो, तुहानू की हो गया। ठहरो जरा, ठहरो जरा। रोकते भी 15-20 फट्टड़ हो गए। तो जो रुके नादर शाह पुछदा आ की कीता। आख्या तेनू जवाब मिल गया, असी सिख भी नकली हाँ, साडा जकारा भी सिखा वाला नहीं हैगा, साडे बोलन दा ढंग भी नकली आ। वेला अपने वड़ दिते ने। जदों सिख जकारे बोलदे ने जेड़े बन गए मौत दे पुजारी, मौत कोलों कन डरदे जी। जेड़े बन गए मौत दे पुजारी, मौत कोलों कन डरदे। जेड़े बन गए मौत दे पुरजा कट मरे कबू न खड़े खेत। समा बनिया कितना विचार करांगे खालसा जी। नादर शाह ने आख्या ठीक ये नहीं मर सकते, मर सकते नहीं, ये तो दुमुटा वाढे वाला कमाद है। एक बारी वढिए तो मगरू ज्यादा हो पैंदा है। मामा फौजियो अरे उन सामने का खेजो मांडे सूरमा अब जिनको चार गुरु प्यारे समा आज्ञा नहीं देंदा। गुरु की संगत जरा ध्यान दे के सुन दी खेचला करनी। एक बारी फिर एक महान अदूती नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 300 साला गुरता गुरगद्दी नूं समर्पित तीसरा अदूती महान नगर कीर्तन
गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार भेवे तो 20 मार्च वाले दिन आरंभ किया जाएगा। 20 मार्च की रात को यह नगर कीर्तन शहीदों की रत भिजी धरती, मेरे कहण तो मुराद फतेहगढ़ साहब की धरती ते गुरु की संगत ये ठहरेगा। 21 तरीक नूं यह नगर कीर्तन आनंदपुर साहब की इस पावन पवित्र धरती से पहुंचेगा। 11 जहाज़ों राही फुलों की वर्खा की जाएगी गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते। और मेरे बस की गल हो तो सारे दुनिया के जहाज इकट्ठे करके तो गुरु ग्रंथ साहब के उत्तों फुलों की वर्खा करा दी है। माफ करना, गुरु की संगत उस दिन सारी रात का 21 मार्च को इत्थे रहन सभाई कीर्तन होगा। यह प्रोग्राम आप जो टीवी राही अखबार राही ये दस दिता जाएगा। उस दिन एक बारी फिर जिमें सचखंड हजूर साहब की पवित्र धरती ते श्री हरमंदर साहब गुरु की संगत के पिजियां ते किते डोसियां दे लंगर चले सन। माफ करना, गुरु की संगत इत्थे भी गुरु की संगत समथिंग स्पैशल और लंगर लाए जाएंगे। सारिया संगतां नूं बेनती आ, पंजाब के कोने कोने चों जिथों जिथों तुसीं चल के आए हो, 21 मार्च वाले दिन 20 मार्च की रात को पंजाब दीयां संगतां दूरों नेड़ों चल के ते फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती ते पुजन की कृपालता करन। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 मार्च ਨੂੰ ਉੱਥੇ ना पहुँच सकन, 21 मार्च ਨੂੰ नगर कीर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु की संगत मिलने की कृपालता करना। और ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 पातशाहियां की खुशी मिलेगी खालसा दी। मैं सारिया संगतां नूं बेनती करदा, आप जी ने हुम हमा के दर्शन देने ते एक जरा धारना भी पढ़ लेनी खालसा दी। चलो चलिए गुरां दी नगरी, चलो चलिए चलिए गुरां दी नगरी, जित मेरा गुरु वसदा संगते संगते, जित मेरा गुरु वसदा जी। चलो चलिए चलिए गुरां दी नगरी, चलो चलिए चलिए गुरां दी नगरी, जित मेरा गुरु वसदा संगते संगते, जित मेरा गुरु वसदा। चलो चलिए जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, ये धरती सारा सरबंस वारिया गया। एक बारी कह दे बहरू वो किते शहीद होए परिवार का मुड़ के ख्याल ना आया। तख्तां ताजा ने मालिक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जो दक्षिण नदेड़ की धरती से पुजे तो मूले खतरी का उधार किया। सह की जूनी च पिया होया सी। एक बारी कह दे बहरू सह की जूनी च पिया होया सी। एक हवा का बुला गोदावरी का उत्तों की उठिया, जिहड़ा पानी दरियावां के उत्तों की जिहड़ी हवा दरियावां के उत्तों की चल के आउंदी है ठंडी होया करदी। एक हवा का बुला गोदावरी के उत्तों की उठिया तो सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने छू के टच करके लंघ गया। भाई दया सिंह ने आख्या महाराज इस हवा के बुले की हवा बड़ी ठंडी आ। गुरदेव ने आख्या सी दया सिंह इस हवा के बुले की हवा आनंदपुर दीयां पहाड़ियां ने मिलती जुलती आ। इस हवा के बुले की हवा आनंदपुर दीयां पहाड़ियां नाल मिलती जुलती आ। वो दया सिंह इत्थे सदा ही आनंदपुर तो ठंडी ठंडी हवा आउंदी रहेगी। साध संगत जी माफ करना गुरु की संगत वासी आनंदपुर दे वो पिता साडे गुरु गोबिंद सिंह, माता साडी सहब कौर, माफ करना भागां वालिओ आपां नूं किन्ना फकर आ किन्ना मान है। गुरु की संगत दुनिया के लोकी गुरु की संगत
अपने पुत्तां दी जायदाद बनाउंदे ने। साडा कलगीआं वाला होए, साडे तू अपने पुत्त भी कुर्बान कर गया, अपना पिता वार गया, माता वार गया, सब कुछ वार गया। अज दे दिन ते मैं तुहानू दूरों नेड़ियों चल के आईयां संगतां नू माफ करना। होले महल्ले दे इस दिवस ते सारिआं नू होले महल्ले दी लख लख वधाई दिंदा ते बेनती करदा, सारिआं नू कुछ लैके जाओ, कुछ लैके जाओ, मन बनाओ, अमृत छको, गुरु वाले बनो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सरबत दा भला, होइयां भुलां दी माफ़ी। अगला प्रोग्राम महापुरख आपदे सामने रखणगे जी। इतिहास बड़ा लंबा है, सत्संग जी मुकदा ही नहीं, ये मुका ये नहीं सुनाया मुकना। कलगीधर पातशाह की कहानी बड़ी दर्दां भरी कहानी है। इन्ने शब्द प्रवान बुलाओ फतेह, सिल्ली जी फतेह ना बुलानी, पता लगे कि तुसीं आनंदपुर साहब च बैठे हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगला समा बाबा जी पंज भैणियां वाले। वाहिगुरू मुख विचों फुल किरदे प्यारे जी, मुख विचों फुल किरदे प्यारे। प्यारे जी मुख बाणी गाउंदे रब दे प्यारे, बाणी गाउंदे रब दे प्यारे। गाउंदे सी रब दे प्यारे, बाणी गाउंदे ने रब दे प्यारे, बाणी गाउंदे रब दे। बाणी गाउंदे ने रब दे प्यारे, जदों गाउंदे ने रब दे प्यारे, बाणी गाउंदे ने रब दे प्यारे, जदों गाउंदे सी रब दे प्यारे, बाणी गाउंदे जदों गाउंदे ने रब दे, जदों गाउंदे ने रब दे। वाहिगुरू मुख विचों फुल कर प्यारे जी, मुख विचों फुल कर दे प्यारे जी, मुख विचों फुल कर दे प्यारे जी, मुख विचों फुल कर दे, फुल कर दे। बाणी उचरै साध जन अमियो चलै झरने, अमृत रूपी झरने चला रहे सन सत्कारयोग बाबा जी। महापुरखों का हुक्म होया है, क्योंकि जिथे महान हस्ती श्रोमणी संत महाराज जो साडे दिलों की धड़कन, अमृत रूपी झरने अमृत भरे बचन वरता जान, उत्थे फिर दास दा बोलना तो इउं समझ लो जिमें सूरज नूं टार्च दिखाउण वाली गल है। खैर बाबा जी का हुक्म होया कुछ देर आपां हाजरी भरीए। महापुरखा ने महान श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती दे और महान शहीदां दियां साखियां विचारां आप जी ने सुना के निहाल कीता है। पता ही नहीं लग्या समय का, ऐसा आनंद वरताया महापुरखा ने। किवें संगतां समाधियां विच बैठे सन, आनंद विच बैठियां सन। सो आओ कुछ देर लाहा लईए। होर बेअंत महापुरुषां ने हाजरियां भरनी है। साडे सत्कारयोग बाबा जरनैल सिंह जी साहनेवाल तो महापुरख बैठे है, और बाबा जी साडे बाबा अर्जन सिंह जी जो महापुरखा ने इन्हां ते रहमतां बख्शियां सन, कीर्तन की दात बख्शी। होर बेअंत महापुरख
ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਆਓ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲੀ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ। ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਦ ਦੇਗਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ। ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ। ਚਰਬੀ ਟਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਕੋਈ, ਜਦ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਕੋਈ। ਜਦ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ। ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੌਰੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੌਰੇ, ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਸਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ, ਮਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੂਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਓਏ, ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਓਏ। ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੈਨੂੰ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੜੇ ਤੂੰ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ, ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਚੜੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਯਾਰੇ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰੇ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ। ਹਾਂ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ, ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ। ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ। ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗੂੜਾ। ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੜਿਆ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ लाल रंग तिसको लगा जिसके वड पागा, मैला कदे न गोवई। मैला कदे न होवई, नह लागे दागा हाथ पाया सुखदाइया। हाथ पाया सुखदाइया, मिलया सुख भाए। हाँ सहज समाना पीतरे, सहज
समाना भीतर छोड़िया न जाए, जरा मेरा जीवन गया। हाँ जरा मरा ना व्यापाई, फिर दुख न पाया, पिया मरत या घने। पी अमृत या घने गोरे अमर कराया। हाँ सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म। हाँ जी सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण तेरी बाणी पाव तूर तेरे दास की। हाँ जी पाव तूर तेरे दास की, नानक कुरबानी लाल रंग तिसको लगा। चढ़ी रखे दिन रात तेरे नाम दी खुमारी, चढ़ी रखे दिन रात तेरे नाम दी खुमारी। चढ़ी रखे दिन तेरे नाम। हाँ चढ़ी रखे दिन रात तेरे नाम दी, चढ़ी रखे दिन तेरे नाम दी खुमारी। बोलो सारे खुमारी, तेरे नाम दी खुमारी। चढ़ी रखे दिन रात तेरे नाम दी, चढ़ी रखे दिन तेरे नाम दी खुमारी। वो चढ़ी रखे दिन रात तेरे नाम, तेरे नाम दी। हाँ चढ़ी रखे दिन बोध भीम अपंग मद उतर जाए पार। नाम खुमारी नागा